I never knew what is merchant navy. I didn't knew that 80%, 90% of the world's cargo is moving by ships. हर एक की ज़िंदगी में जो पहला दिन होता है किसी भी नई चीज़ का, वो बड़ा मायने रखता है. I did not choose merchant navy chose me. I feel that way. सुबह 4 बजे अगर आप उठे हुए हो और आप मेंटली 6 बजे तक एकदम फ्रेश हो और आप उस जगह पर 8 बजे पहुंच गए, मेरे को लगता है बड़ा मुश्किल है कुदरत को आपको वहाँ से खाली हाथ लौटाना. वहाँ पर आप हमेशा झोली भर के जाओगे. फर्स्ट डे पे जब आपने मर्चेंट नेवी का जो एक्सपीरियंस किया, वाज इट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन? देखो, मैं जब ट्रेनिंग करने गया तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई, आई वाज वेरी हैप्पी दैट टुडे इवनिंग 8 o'clock माय फादर विल नॉट कॉल मी एंड आस्क मी व्हाई हैव यू नॉट कम होम. ये पूरा जनरेशन, वी आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह से विद इंटरनेट एंड एवरीथिंग, बट दिस जनरेशन इज द लोनलीस्ट जनरेशन. आपके टाइम पे हाउ डिड यू स्पेंड दोज डेज अवे फ्रॉम द फैमिली? जो गाँव की परवरिश है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में शहरों की परवरिश से बेटर है, और इसलिए गांव से जो पलायन होकर शहर में आता है वो झंडे गाड़ता है. और शहरों में रहकर जब आप गांव में जाते हो, आपका जीना बड़ा मुश्किल है. और मुझे लगता है बीइंग अ वर्ल्ड मैरीटाइम पावर फॉर इंडिया, इफ दैट ड्रीम हैज टू कम ट्रू, द पैसेज ऑफ दैट ड्रीम passes through merchant navy, and in my life I want to be part of that destiny. Welcome back to the today's podcast. Today's conversation is really special because we are diving deep into the world that fuels global trade, adventure, and one of the strongest career opportunities for the youth of India, that is merchant navy. And today we have with us none other than Captain Sanjay Parashar, a man who needs no introduction, and he has spent years not only navigating the oceans but also guiding the next generation of seafarers. Namaste, Captain Sanjay. नमस्कार सर. Welcome to the podcast. How are you feeling today? धन्यवाद. युवा शक्ति के बीच में बैठते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है. Sir, I wanted to start this discussion with most asked question from the youth, and that is always going to be about the salary and lifestyle. But let's start this discussion with if somebody wants to join Merchant Navy, where do they even begin? I think he should start thinking about merchant navy when he's in class 10. It is up to the parents and the school that they have to introduce this subject to the students who are in 10th class. Because actually when you are in 11th, you having PCM, actually you get a footing into merchant navy dream. And I think when you start after 12th, it takes 1-2 years to even know about merchant navy and to figure it out, how you can make a career. You'll be very lucky if you can get the information in 2 months and you make up your mind. So I personally feel Indian youth is absolutely right for merchant navy in the world. And merchant navy मतलब what? Merchant मतलब व्यापार, navy मतलब समुंदर की नावें, उन पर काम करने वाले लोग, seafarers. So you have to be, getting into merchant navy kind of a thing, into career making. The thought process must come when you are 15 to 16 years young. And I feel that is the time you should look into Indian Maritime University brochure. And that is the time you should look into the dgshipping.gov.in website, and you should meet people who are in merchant navy. That's how you start your first step. So what made you choose this career? भैया ऐसा है, हमारे समय में ना अखबारें होती थी. So there was a district library in Ambala Kent, and I had a very good friend Anil Arora, whose mother knew one of the other mothers whose 2 sons were in merchant navy, Trehan brothers. Okay. So we were trying for NDA. We failed NDA SSB. So then this Anil Arora comes to the school and he says, भाई merchant navy है, चीवा सर को 35,000 मिलते हैं. This I am talking is 1989, 1990. 35,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था. और हमने बोला यार ये होता कैसे है? तो दोस्तों की चर्चा आपके कैसे भाग्य बनाती है, हम उसका एक उदाहरण है. I never knew what is merchant navy. I didn't knew that 80%, 90% of the world's cargo is moving by ships. So I think friends play a role in your destiny. And I am an example of that. Anil Arora told us. Then we went to the district library, started looking at newspapers. So then there used to be small ad, appointments column. And then we made application form. And then we applied into a couple of companies. Then we were called for interview. First time came to Mumbai. पहली बार दादर एक्सप्रेस में बैठे और पहली बार घर से छूटकर एक आज़ादी मिली जिसमें हम कुछ भी अपने टाइम पर उठ सकते थे, जाग सकते थे, सो सकते थे. और बॉम्बे आए, 40 रुपये खर्चे, होटल लिया 6 घंटे के लिए, बलाड एस्टेट में गए, इंटरव्यू दी. 83 पीपल वर देयर, 5 वर सिलेक्टेड. तो उसमें अरोड़ा, रामपाल, संजय पराशर तीनों अम्बाला कैंट के सेलेक्ट हो गए. आई डोंट नो हु एक्चुअली शुड बी गिवन द क्रेडिट. अ पर्सन लाइक मी एट द एज ऑफ 18 who didn't knew about merchant navy gets a friend because father is transferred to Ambala Kent. He is from Air Force background. I studied in KV. And then we end up coming to Mumbai, and out of 83, 5 are selected. No sifarish,
नो चर्चा, छोटा सा खर्चा, और उसके बाद में TS रहमान. सो आई थिंक जब भगवान ने आपका काम बनाना होगा, आपके गुरु ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे कि आपको लगेगा आपके काबिलियत पे काम बन रहा है, बट मुझे लगता है ये ईश्वरी कृपा से काम बनता है. सो आई गॉट दिस करियर बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्ली अम्बाला कैंट कनेक्शन. सो आई एम थैंकफुल टू माई डेस्टिनी. सो व्हेन यू से दिस अबाउट, तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? बिल्कुल, संगत की रंगत जो होती है ना, वो आपका सारा जीवन आई थिंक उसके ऊपर ही टिका हुआ होता है. आपने फर्स्ट डे की जब कहानी बताई थी, तो आई सॉ दैट स्टोरी एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, बट आई रियली वांट टू लिसन टू दैट स्टोरी वंस अगेन. मेरी मदर कपड़े धो रही थी और एक उस समय टेलीग्राम का समय था. पोस्टमैन आया, उन्होंने एक टेलीग्राम दी, उसमें लिखा हुआ था कि कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, है ना, छोटा सा एक मैसेज आया. तो थोड़े दिनों बाद चिट्ठी आई, तो हम वो चिट्ठी लिए, अम्बाला कैंट से हम चले गए तरवाड़ा बाबा भूती राम जी के डेरे में. और हमने बोला बाबा जी ये चिट्ठी आई है, नौकरी चाहिए. तो उन्होंने बोला जा जेड़े पासे जाना चले जा, तेरे वास्ते उस पासे नौकरियाँ होनी है, ये चंगी लाइन है. तो उन्होंने बोला लाइट आ रही है. अब ये संतों की बातें थी, तो हमको ये लगा कि नौकरी का अगर कॉल लेटर भी आया है तो उसका आशीर्वाद लेने पहले गुरुओं के दरबार जाना है. एंड फिर उसके बाद की तो कहानी दूसरी है. फिर उसके बाद में जब पहले दिन हम इंटरव्यू देने आए यहाँ पर, तो हमारे 3 दोस्त थे हम लोग. एक ही टाई थी हमारे पास, जूतों का पेयर भी एक था जो बेस्ट भरा था. टाई बांधनी नहीं आती थी, घर से बंधवा के लाए थे. तो एक थोड़ा लंबा था, उसके लिए टाई ऊपर हो गई, बाकी हमारे लिए टाई ठीक ठाक आ गई. लेकिन हमें ये पता था कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वो जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, वी हैड आई हैड प्लेस्ड ऑल दो सर्टिफिकेट्स इन अ फोल्डर. एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैड 72 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट इन co-curricular activities and sports during my school time. 72 certificates. And I think that actually shows how you have been during schooling days and all that. So I was interviewed only for 2 minutes. And when I saw my name in the list in the evening, and of course, second day I just told the MD, Mr. Peter, that time, he is, probably 1969 batch DMD gold medalist. So I told him, sir, हमारे पास तो पैसे नहीं है रहने के. उन्होंने होटल अरेंज कर दिया. ज़िंदगी में पहली बार होटल में रहे कंपनी खर्चे में, बॉम्बे में. और उसके बाद जब पहले दिन ट्रेनिंग करने गए तो उन्होंने बाल काट दिए. हमारी तरह कई और 50 लड़के उधर मिल गए. फिर हमको लगा यार ठीक है, ये वानर सेना के बीच में हम लोग ठीक हैं. एंड हर एक की ज़िंदगी में जो पहला दिन होता है किसी भी नई चीज़ का, वो बड़ा मायने रखता है. सो द फर्स्ट डे इन मुंबई, फर्स्ट डे इन TS रहमान, फिर उसके बाद 6 दिसंबर को पहले दिन वो स्वीडन में लुलिया में जहाज़ के ऊपर जाना, जहाँ पर -20 डिग्री टेम्परेचर था, समुंदर बर्फ़ बना हुआ था. वहाँ पर लोगों को मिलना, 52 पीपल ऑन बोर्ड, अरेया अबेस करना, दामोदर बल्क कैरियर्स. तो पहले दिन का नशा कुछ और होता है, वो मरते दम तक आपके साथ रहता है. वो मेमोरीज अभी तक आप इतने प्रॉपरली विथ नेम्स, विथ टाइमिंग, विथ वो एग्जैक्ट डेट, इतने इनग्रेंड अच्छे से है माइंड में. सो अगर वो टाइम में आपने ये फ्रेंड्स की संगत की वजह से आपने ये करियर चूज़ किया, इफ़ यू वुड हैव नॉट चोजन मर्चेंट नेवी, इफ़ देयर इज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू? आई डिड नॉट चूज मर्चेंट नेवी चोज मी. आई फील दैट वे. मेरे को ये लगता है कि मैं इंडिया जाना चाहता था और उसमें इंडियन नेवी जाना चाहता था. मैं बड़ा हताश हुआ जब भोपाल SSB और बेंगलोर SSB में मैं फेल होकर आ गया. मुझे लगा दुनिया ख़त्म हो गई. उस समय ऐसा लगता है कि यार सुसाइड ही कर लो, ये भी कोई जीना है. मतलब इतना डिप्रेस हो जाता आदमी. हमें पता नहीं था इसको डिप्रेशन कहते हैं. लेकिन हमको ये लगा यार हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी. लेकिन ऐसा होता है, भगवान जो तय करता है आपके लिए, जहाँ पर मना करता है, वो इसलिए मना करता है कि कहीं दूसरी जगह उसने दरवाजे खोले हुए थे. नॉट टू अंडरस्टैंड दैट फिलोसॉफिकली ओनली यू कैन डू इट इफ यू हैव लिव्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर पीरियड. सो आई एम वेरी लकी दैट मीटिंग माई फ्रेंड्स. एक चीज़ दुनिया में पक्की है, माँ बाप आपकी मर्जी के नहीं है. आपने किस घर में रहना है, आप वो शहर आपकी मर्जी का नहीं हो सकता, लेकिन बाद में वो घर आपकी मर्जी का हो सकता है. पर मुझे लगता है रिश्ते, भाई बहन कौन होगा, है ना, मासी कौन होगी, फूफड़ कौन होगा, वो सब कोई आपके उसमें जोर में नहीं है. एक चीज़ आपके जोर में है, आपके दोस्त. और वो आपके स्वभाव के अनुसार मिलते हैं. क्रिकेट खेलते हैं, कोई दोस्त बन जाता है, कोई नहीं बनता. तो मुझे लगता है दोस्त तो हमेशा आदमी चुनता है ना. तो मुझे लगता है कि शायद जो मेरा स्वभाव था उसके अनुसार अच्छे दोस्त मिल गए. और आज संजय पराशर जिस दमखम से खड़ा है उसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों का योगदान है. और मुझे लगता है कि मैं कभी किसी का उनमें से एहसान तो नहीं लौटा सकता, बट हमेशा सारी ज़िंदगी उनका धन्यवाद कर सकता हूँ. आई हैव गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव फ्रेंड्स लाइक अतुल त्रियान, लाइक रामपाल, अरोरा. देयर मैनी किस का नाम लें. मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में भगवान आपको घर से बाहर निकाल कर
कहीं पर भी आपको पहला दिन देता है, आप ये मानना कि पूरी दुनिया ने ताकत लगाई है तब आप वहाँ पर हो. If you are walking into office, if you are walking into a new place, go with your character, go with your confidence. सुबह 4 बजे उठो अच्छे से. अगर आप जिस पद्धति को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, ना रगड़ के जाओ. सुबह 4 बजे अगर आप उठे हुए हो और आप मेंटली 6 बजे तक एकदम फ्रेश हो और आप उस जगह पर 8 बजे पहुंच गए, मेरे को लगता है बड़ा मुश्किल है कुदरत को आपको वहाँ से खाली हाथ लौटाना. वहाँ पर आप हमेशा झोली भर के जाओगे. So never get up late if you really want to do well in life, and never waste your time when you get the first opportunity. सारा खेल पहले 10 सेकंड का है और सारी जिंदगी की तपस्या वो 10 सेकंड में लग जाती है. Always so be prepared. go always prepared. बिल्कुल ठीक कहा आपने. और मुझे लगता है अनुशासन जो है जिंदगी का, डिसिप्लिन जो है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है. फर्स्ट डे पे जब आपने मर्चेंट नेवी का जो एक्सपीरियंस किया, वाज इट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन? आपके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एंड वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें नई नई होती है. व्हाट डिड यू फील? देखो, मैं जब ट्रेनिंग करने गया तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई, आई वॉज वेरी हैप्पी that today evening 8 o'clock my father will not call me and ask me why have you not come home. So I felt, oh wow, now nobody's going to ask me. And then I thought, well, for 1 month nobody's going to ask me. Then I thought, okay, it is so great, you know. And then I saw, you know, you can play, you can study, you are on your own. When I went to the ship, I said, wow, क्या जगह पर आ गए यार, फॉरेन कंट्री देख लिया. पहली बार हवाई जहाज में बैठे भाई मेरे, उधर तो 6.5 फुट की तो लंबी लंबी एयर होस्टेस थी KLM में, और हम छुटकू से 52 kg वाले संजय पराशर. जब वहाँ पर खाना सर्व हुआ, हमें तो ये नहीं पता ये वेज या नॉन वेज, हमने तो खाना ही नहीं खाया क्योंकि हम वेजिटेरियन आदमी. हमें लगा यार ये पता नहीं क्या है. अच्छा, फिर खाना नहीं खाया तो बस ऐसे ही बैठे रहे. इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और मांग लें. और अपनी ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठना, वो भी कंपनी के खर्चे पे, मुझे लगता है उसका जो एक आनंद है ना, उसका एक नशा जो है, उसको एक जो याद करके एक स्मृति में जो एक अपने आप को अच्छापन जो लगता है, आई डोंट थिंक दैट यू कैन एवर इक्वलाइज दैट. गोइंग फर्स्ट टाइम ऑन द शिप, यू वॉक अप टू द गैंगवे एंड यू लुक एट शिप, अरे वाह अच्छा ऐसा भी होता है. फिर आपको एक कमरा मिलता है, आप देखते हो भाई ये तो बड़ा अच्छा कमरा है. एक्चुअली मुझे लगता है कि जो छोटे शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं लोग, जिन्होंने मतलब बड़े बड़े जलवे नहीं देखे, उनके लिए हर दिन एक बड़ा जलवा होता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो, टैक्सी में बैठे लूलिया -20 डिग्री, एयरपोर्ट से बाहर निकले पूरी बर्फ ही बर्फ है और टैक्सी के अंदर हीटर है. हमने बोला वाह यार ये तो अंदर बैठे भाई, यहाँ तो बड़ा अच्छा यार, कोजी सा है, कमाल हो गया. अच्छा, जहाज के ऊपर चढ़े, कोई नहीं पूछेगा आपको आपने दारू पीनी है नहीं पीनी है, उस समय तो अल्कोहल भी ओपन थी. कोई नहीं आपको पूछेगा आपने कितने घंटे काम करना है, कोई नहीं पूछेगा आपने पढ़ना नहीं पढ़ना. मुझे लगता है एक जो आज़ादी मिलती है ना मर्चेंट नेवी में आकर, उसको हर एक आदमी अपने तरीके से जीता है. पर जो उसको सही तरीके से जीता है ना, भगवान उसको बड़ी जिम्मेदारियां देता है. तो मुझे लगता है कि फर्स्ट डे माय फर्स्ट कैप्टन भरत भूषण खंडूजा, वो इतने सख्त मास्टर थे, 33 साल के. हमारे फर्स्ट चीफ ऑफिसर तीरथ लाल 83 बैच के, वो हमें यही डराते रहते थे, कैडेट्स यू डोंट नो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. आई वाज सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स बिकॉज देयर वर नो जॉब्स. हमने सोचा भाई मेरे, अगर तो हमको मर्चेंट नेवी में पानी सूख गया, जहाज कम हो गए, हम भी वैक्यूम क्लीनर ही बेचेंगे. तो इसलिए हमने सोचा भैया फटाफट अपना सी टाइम करो और एग्जाम पास करो. सो आई थिंक आवर चीफ ऑफिसर्स एंड मास्टर्स वर एक्चुअली हु हैड सीन द रिसेशन ऑफ 80s, एंड दैट इज व्हाई आवर फर्स्ट डे वाज स्पेशल, बिकॉज वी मेट द राइट पीपल हु हैड स्ट्रगल्ड टू मेक अ करियर एट सी एंड दे हेल्प्ड अस टू ग्रो. तो पहले दिन की बात ही अलग थी. फिर डे टू डे लाइफ कैसे होता है? देखो, डे टू डे लाइफ आज की और उस समय में तो बड़ा कोई कंपैरिजन ही नहीं है. लेकिन उस समय हम क्या करते थे, जहाज पे फिर लेटर पैड ले गए. अच्छा, वेले होते थे, हमने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी. हर दिन 3-4 पन्ने लिखने. क्या लिखना? अरे आज खाना बड़ा अच्छा था, आज चीफ कुक ने ये बनाया, अरे यार आज वो फलाने आदमी ने मेरे को ये बोला, मज़ा नहीं आया, अरे आज समुद्र में हमने ये देखा, इधर बड़ा अकेलेपन में मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि कम से कम समय अपने साथ व्यतीत कर रहा हूँ. फिर आज मैंने बाइबल पढ़ी, आज मैंने फलानी बुक पढ़ी. मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था, जहाज में बुक्स बड़ी होती थी. फिर पिक्चर देख ली, VCR होते थे, उसके बारे में लिखना. अच्छा, अपने घर वालों को चिट्ठी लिख के खत्म हो गए, 10-15 पन्ने. चलो भाई अरोड़े की मदर को लिख देते हैं, चलो मैं अपनी बुआ को लिख देता हूँ, मेरी चिंतपूर्णी में बुआ थी उसको लिख दिया. फिर मेरी एक कज़न थी उसको लिख दिया. मतलब हम ऐसा था कि वी यूज्ड टू एंजॉय. और हमें ये लगता था यार ठीक है, पायलट को देते थे अपना लेटर, पायलट ले जाकर पोस्ट कर देता था. घर वालों को लगता था जब डाकिया के चिट्ठी देता था, अरे भैया फॉरेन कंट्री से आई है. कितना टाइम लगता था चिट्ठी देने? उस समय चिट्ठी पहुंचने में ही मेरे को लगता है करीब 15-20 दिन लग जाते थे. फिर वो चिट्ठी लिखते थे, हमारे पास एक चिट्ठी का जवाब आते आते 60 दिन से 90 दिन हो जाता था.
और सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ मेरे को जहाज पे आती थी। मैं 20-22 लिखता था, मेरे को 10-12 के जवाब आ जाते थे। और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा समय था, और आज भी बड़ा अच्छा समय। आज तो ईमेल का टाइम है, बट आज भी मेरा एक ओनर है, उसने हमें जहाज़ दिए और हमें लगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था मेरे इसी ऑफिस में, तो मैंने उस ओनर को एक हाथ से चिट्ठी लिखी, और जब वो चिट्ठी उस तक गई और उसने वो चिट्ठी पढ़ी, उसने मुझे कॉल किया और बोलता मुझे आपकी चिट्ठी बड़ी अच्छी लगी एंड आई थिंक यू आर अ गुड मैन, विल गिव यू मोर वर्क। तो अभी उसने 3 जहाज़ और दे दिए। तो मुझे लगता है कि धीमी गति में बड़ी ताकत होती है ना। सब कुछ फास्ट फूड, फास्ट कॉफ़ी, है ना, फास्ट फ्रेंडशिप, फास्ट नाइट, फास्ट टाइम, ये इसमें कई बार आदमी उलझ के रह जाता है। बट टॉर्टोइस की भी अपनी एक ताकत है, और मुझे लगता है चिट्ठी की धीमी गति में बड़ी ताकत है। तभी के जनरेशन में और अभी के टाइम में इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एंड एज यू राइटली सेड कि अभी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लोगों के पास है, लाइक 10 years बैक शायद नेट भी नहीं था शिप पे, आपके टाइम पे तो वो सारी भी सुविधा नहीं थी। अभी तो स्टारलिंक की वजह से वो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बट व्हाट वी आर टोल्ड इज ये पूरा जनरेशन वी आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह से विथ इंटरनेट एंड एवरीथिंग। बट दिस जनरेशन इज द लोनलीस्ट जनरेशन। आपके टाइम पे हाउ डिड यू स्पेंड दोज डेज अवे फ्रॉम द फैमिली? बड़े गप्पोड़ी बंदे होते थे जहाज पर, वो ऐसी ऐसी गप्पे मारते थे। बोलते एक बार समुद्र में तूफान आया, जहाज ऐसे से नीचे जा रहा था, मैंने कैप्टन को बोला कि साहब फुल एस्टर्न दो, जहाज ऐसे पानी से निकला और फिर चल पड़ा। और हमको लगता था भाई ये तो राजा हरिश्चंद्र के बाद यही आदमी है जो सच बोल रहा है। एकदम बाद में पता लगता था गप्पे मार रहे हैं। हम नए नए थे उस समय, मतलब पहला दूसरा तीसरा दिन होता था जहाज पर। तो मुझे लगता था पहले संवाद बड़ा था, और अभी भी होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है शहरों के युवाओं का गांव के युवाओं का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बट ठीक है, फ़ोन आने से फ़र्क पड़ा, शायद ये एक वरदान भी है। और पुराने समय में चिट्ठी लिखना वरदान ही था, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आज के समय में ईमेल सिस्टम भी ज़रूरी है, पर लोग अपने आप के लिए समय निकालें और अपने अनुशासन में इतना ज़रूर समय रखें कि अकेलेपन में बैठकर ये ज़रूर सोचें यार मज़ा कितना आ रहा है। तो उसको हमारे यहाँ एक पंजाबी में कहते हैं रब दा शुक्राना करना, बी थैंकफुल टू गॉड। ये मानस चोला बार बार नहीं मिलेगा। सो यूथ का ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट हो, ठीक है, मोटिवेशन लेवल हाई हो, अच्छा है, पर जिस यूथ ने मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन रख लिया ना, उसके लिए दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। उसके लिए सिर्फ मौके मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ कंपटीशन नहीं होता। तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट अ पर्सन शुड हैव इफ ही वांट्स टू बिकम वेरी सक्सेसफुल इन मर्चेंट नेवी? मेरे में बड़ी कम पेशेंस थी, अब मैं पेशेंस का दूसरे को क्या ज्ञान दूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को मर्चेंट नेवी ने पेशेंस सिखाई। वो ऐसे सिखाई कि हमें ये लगता था फटाफट एग्ज़ाम दे दो, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, लेकिन जल्दी से जल्दी करने के बाद भी एक समय लगता है, एक परिपक्वता आने में समय लगता है। कुदरत ने सिखाया हमें। सो आई थिंक पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, नो, बढ़िया सा गाना सुन लो, है ना। और एक है जैसे मेरा आपकी कृपा से बस काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो कई ऐसे भजन हैं मैं सुन लेता हूँ, फिर नुसरत फ़तेह अली खां के सूफ़ी गाने सुन लेते हैं, फिर हमें लगता है भैया थांबा, काहे जल्दी कर, क्या है इतना घाई है, कितना घाई करने का है। अपने से पहले भी कई आए, अपने बाद भी कई आने वाले हैं। तो मुझे लगता है जहाँ जल्दी करनी आप करो, लेकिन अगर जल्दी में काम नहीं हो रहा, सब्र। बट शिरडी साईं बाबा की कही हुई बात, श्रद्धा और सबूरी, मुझे लगता है कि जिसने ये अपने जीवन में इस बात को संभाल लिया, वो मुझे लगता है आत्मीयता तौर पर इस दुनिया में कामयाब है। आपको किसी देश में शिरडी के साईं बाबा के मंदिर? अरे क्या बात है, साईं राम। मैं गया फिजी, भारत से दूर एक छोटा भारत, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा था, एनसीईआरटी में, शायद 7वीं 8वीं कक्षा में था हमारा। एक बार हमारा जहाज फिजी चला गया, मैं सेकंड ऑफिसर था, 25 साल के थे, और मतलब ये हमको लगता था दुनिया में गजब ढा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर मैं गया तो मैंने वहाँ पर पायलट को पूछा, देखा अरे इंडियन पायलट है। फिर मैंने उसको देखा, दूसरे कई इंडियंस थे, तो उधर 50% आबादी हिंदुस्तानी होगी है, और वहाँ पर वो मतलब यूपी की लेबर गई होगी किसी ज़माने में ब्रिटिश टाइम में। तो मैंने उनको पूछा एनी टेम्पल नियर बाई, तो उन्होंने बोला यस यस, यहाँ एक साईं बाबा का मंदिर है। मैं थर्सडे था, मैं चला गया, और 4 से 5 वहाँ पर भजन होते थे। वहाँ पर एक पंडित जी मिले, वो पंडित जी उनके वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हम तो कई जनरेशन पहले आए हैं, मैं तो 4th जनरेशन हूँ। तो वहाँ पर हमने फिर शिरडी साईं बाबा के भजन वजन किए। तो वैसे ही सत्य साईं बाबा के भी मंदिर में मैं एक बार चला गया। कहाँ पर? वेनेजुएला में। हमें नहीं पता था यार वेनेजुएला में भी साईं बाबा का मंदिर है। चलो मतलब पूछ पाछ के पहुँच गए, इस्कॉन के मंदिरों में चले गए। तो मुझे लगता है 32 देशों के मंदिरों में जाने का जो सौभाग्य मिला है, मुझे लगता है शायद मेरे पूर्व जन्म की तपस्या होगी। सनातनी होने के नाते, सनातन धर्म में
आपको कहीं विदेशों में भी जाकर अपने धर्म के पूजा के स्थान मिल जाएं, अरे क्या बात है। ये मर्चेंट नेवी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा देशों में घूमने का मौका मिल जाता है. वी गेट टू लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल्स. या देखो, एक राज कपूर की पिक्चर थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8. तो मुझे लगता है कि श्री श्री प्रभुपाद जी जब इस्कॉन वाले $1 में, है ना, जलदूता में, अगर वो उधर चले गए USA और उन्होंने इस्कॉन एस्टेब्लिश कर दिया, तो आई थिंक मर्चेंट नेवी इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड जहाँ पर आप $1 हो या $8 हो, आप पूरी दुनिया घूम कर आ सकते हो. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सीफेरर्स दे हैव टेकन वाटर ग्रेव, और उसका स्मारक है एक हमारे यहाँ पर मस्जिद बंदर के पास में. तो मुझे लगता है कि खतरे एक तरफ, किया हुआ काम एक तरफ, पर दुनिया घूमना और अपने जवानी में, द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर यूथ, आप इतना बड़ा समुंदर देख रहे हो, 2/3 वो दुनिया जो कभी दुनिया वाले नहीं देखते, और आप भरी जवानी में देख रहे हो, आप क्या कंपैरिजन करोगे उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है. तो मुझे लगता है विदेशों में जाना, लोगों से मिलना, अगर आपका शौक है, और या तो आपने वो शौक पाल लिया, मर्चेंट नेवी से बढ़िया नौकरी दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ. मेरे दोनों बच्चे इस समय मास्टर्स इन नेवल आर्क एंड मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं. मैं तो यही बात जानता हूँ कि भैया अगर तो पैसे कमाने हैं साफ सुथरे तरीके से और खुलकर जीना है, बहुत अच्छी लाइन है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए. हम तो उस बैकग्राउंड से आते हैं. अर्निंग इन डॉलर्स एंड नॉट पेइंग टैक्सेस, ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा हमें बताया जाता है पहले से ही. ये तो चलो, फिलीपींस में तो आप एक दिन भी नौकरी कर लो टैक्स नहीं देना पड़ता. हमारे यहाँ तो 184 दिन करने पड़ते हैं, 184 डेज. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक सैलरीज आर गुड. अब आप कंपैरिजन करो ना, जहाज है, जहाज की कीमत कितनी है? 1,000 करोड़. उसके ऊपर सामान रखा हुआ है आपने 6,000 करोड़. 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज. उसकी इंश्योरेंस कितनी है? 22 आदमी मिलकर उस जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे. तो सर्टनली दे हैव टू बी पेड वेरी वेल. इसमें ओनर भी कंजूसी नहीं करता, बिकॉज ओनर की भी पर डे अर्निंग इज एज गुड एज 30 लाख to 40 लाख रुपीज पर डे. तो और मेरे को लगता है कि जब खेल इतना बड़ा हो, तो जो खिलाड़ी उसको खेल रहा है जहाज पर रहकर समुंदर के लहरों के बीच में, तो उसकी तनख्वाह तो अच्छी होनी चाहिए. और अगर अच्छी है तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा. ये बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से चलता है. अभी हमने एस्टेब्लिश तो कर दिया कि मर्चेंट नेवी के बहुत सारे पॉजिटिव्स. सबसे इम्पोर्टेंटली नेगेटिव्स के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, तब ये लोनलीनेस ही आता है, जिसके बारे में आपने बताया अभी कि द सॉन्ग्स दैट यू यूज्ड टू लिसन. इज देयर समथिंग दैट यू फील कि मर्चेंट नेवी ने आपको बहुत कुछ सिखाया और ये चीज़ आपको बाहर कहीं लाइफ में सीखने नहीं मिलती? मैं 12 साल मैंने नौकरी करी, उसके दम पर अभी मेरे को किनारे में भी 22 साल हो गए नौकरी करते हुए. मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड गेट टाइम टू स्पेंड द टाइम विद देमसेल्व्स. एंड हैविंग सेड दैट, आई फील दैट शिप्स नाउ मूव फास्ट, पोर्ट टर्न अराउंड इज फास्ट. सो फॉर मी टू कंपेयर माई टाइम विद टुडेज टाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट. बट इवन इन टुडेज टाइम्स आई हैव रिटन लेटर टू माई सन. मतलब जो आदमी की पुरानी आते हैं ना, वो आते हैं उसकी कायम रहती हैं. जहाँ तक यूथ का सवाल है, मुझे लगता है कि माँ बाप को सबसे ज़्यादा समय अपने बच्चों को देना चाहिए. और अगर माँ बाप अपने बच्चों को समय दे रहे हैं, तो बच्चे भी अपना समय माँ बाप को देंगे. दूसरा, माँ बाप पे डिपेंडेंट ना हो. तो मुझे लगता है कि जो पुराना टाइम होता था ना, हम झाड़ बंदर खेलते थे कि भाई नीचे एक डंडा रख दिया, सब पेड़ पे चढ़ जाओ, एक बंदा उसके डंडे की रखवाली करेगा, ऊपर से जंप मारो, और अगर आप डंडा लेके चले गए तो मतलब दोबारा से उसको पिट्ठू पे लेके जाना पड़ेगा. गुल्ली डंडा खेलते थे. तो पुराने समय के जो खेल थे वो अलग थे. पुराने समय का कैरम बोर्ड अलग था, लूडो अलग था. अब तो सब कुछ ही मोबाइल पर है. तो मुझे लगता है कि आप अपना 1-1.5 घंटा जो समय निकालना है मोबाइल पे निकालिए, है ना, प्ले स्टेशंस पर निकालिए. पर जो गाँव की परवरिश है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में शहरों की परवरिश से बेटर है. और इसलिए गांव से जो पलायन होकर शहर में आता है, वो झंडे गाड़ता है. और शहरों में रहकर जब आप गांव में जाते हो, आपका जीना बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए आप अगर शहरों में हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मेक श्योर दैट यू आर मेंटली स्ट्रांग. एंड इट इज़ बेटर एवरी संडे यू एक्चुअली बिल्ड योर कैरेक्टर एंड यू बिल्ड योर स्किल्स, एंड लिविंग विद योर सेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन एवर हैव इन लाइफ. वो कहीं पे नहीं सीख सकते. हाँ, वो समुंदर में तो खुलकर मिलता है समय आपको. और मुझे लगता है कि नेट की ज़रूरत है,
पर इतना भी ज़रूरत नहीं है कि नेट में आप फंस जाओ, इंटरनेट के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए, उलझ के मत जाइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्चेंट नेवी में आपके टाइम से, मतलब से 1990 टू 2000 से लेकर अभी 2025 में पॉजिटिवली चेंज हुई है? देखो, सबसे अच्छा तो ऑफ कोर्स पैसे बढ़े हैं, मतलब ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपने 10-12 साल की नौकरी करी है, हमारे समय में देयर वर नॉट सो मेनी जॉब्स एश्योर। हमको क्रूइंग में जॉब मिल गई, ठीक है, ट्रेनिंग में मिल गई, बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मर्चेंट नेवी गाइस। कॉम्प्लाइंसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे सायर हो गया, टैंकर के इंस्पेक्शन हो गए, पोर्ट स्टेट कंट्रोल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़ गई है, ऑनलाइन सिस्टम बहुत बढ़ गया है, कैमराज लगा दिए हैं जहाज पे, ठीक है, अभी कुछ भी होएगा कैमरा है, ठीक है, रील झील बना रहे हैं लोग, मतलब ऐसा है, ग्लैमर भी है। मर्चेंट नेवी में अनुशासन तो है ही है, बट एक आज़ादी भी है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी भी बढ़ी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे समय में चोरी चकारी शायद ना के बराबर होती थी। डुप्लीकेट सीडीसी बन जाए, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस वीटी के एरिया के बाहर 1000 रुपये में, वो सबसे बड़ी धांधली वो थी। अब तो आप करोड़ों रुपए ले लो, गबन कर लो, है ना। अभी एक शिरोडकर जी को पकड़ा है, ठीक है, वो पैसे ले रहे हैं लोगों से, जहाज पे नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, वैसे तो पैसे ही नहीं लेने चाहिए। अच्छा, फिर ये गड़बड़ घोटाले हमारे समय में नहीं थे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। कहीं ना कहीं लोगों को जल्दी है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की। देयर आर ओनली 3.5 लाख पीपल इन मर्चेंट नेवी फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी आज़ादी है, इतनी बड़ी आज़ादी वाला हिंदुस्तान है, बट फिर भी नौकरी मिलने की आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल है। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। ओपननेस आई है तो चोरी चकारी भी आई है, ईमानदारी एक एक बादान करके नीचे गिर रही है। तो मुझे लगता है कि ये पुराने समय में और आज के समय में फ़र्क है। उस समय किसी कैप्टन ने कह दिया, डोंट वरी सन, आई विल सेंड यू ऑन बोर्ड। ऑफिस में अगर किसी ने कह दिया, पत्थर पे लकीर है, भगवान की बात है। आज की तारीख में अगर वो कहते हैं ना, आई विल सेंड यू ऑन बोर्ड, जब तक आप जहाज पे नहीं गए ना, किसी के बाप पे भरोसा मत करना। चोर उचक्के बहुत ज़्यादा आ गए इस लाइन में। स्कोप ऑफ जॉब्स भी बहुत बढ़ गए। मुझे लगता है स्कोप ऑफ जॉब्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से ठीक है। तो मुझे लगता है काम करने वाले के लिए इतना मुश्किल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट उस समय, पुराने समय में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि क्या है, तो लोग ज़्यादा एंगेज रहते थे अपने जहाज़ के ऊपर कामों में, और साथ में जी भी लेते थे। बट आजकल मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई मगजमारी है कि वी कैन से ओ द लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट एट सी एंड ऑल दैट। If you want to crib and complain, it is better to quit sea life, you know. I think if they are paying you, just do your job. And if you're not being able to do your job, come ashore, update your skills. And I think there are always two people at sea. One can use Microsoft Office, Word, Outlook, PPT presentations in a very good manner. The other one is a struggler. So I think time management at sea is now more of an issue with the work what you have in hand. And I personally feel if you are truthful, if you are straightforward, life at sea is one of the best. If you are manipulative, आप रगड़े जाओगे। आप फोटो को साफ करके भेज दो और बोलो हमने जहाज को साफ कर दिया, आपकी सफाई हो जाएगी। AI का यूज करके। कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं ऑन शिप? अगर यूथ को मर्चेंट नेवी में नौकरी करनी है तो आई थिंक दे हैव टू डू PCM and they have to have that mindset. Please make sure your mathematics is very good. And mathematics in 10th class, 80% you get from board, 20% internal assessment. And you should be at least 75 to 80% in 10th class in your mathematics. Okay. And if you are 55, 60 and all that, then you will end up struggling clearing your IMU CET. IMU CET, by 11th class, you should have the brochure, you should have the syllabus, and mentally you should be ready. There's no need to take coaching classes, just do your 11th and 12th very well. IMU CET, about 45,000 people give exam, about 18,000 people pass exam. And there are vacancies, 2,000 for deck cadets, 2,000 for engineers. So nearly 4,000 to 5,000 people get jobs. So it's comparatively very, very easy in India. Just imagine 2,000 marine engineers every year pass out compared to more than 300,000 computer science engineers. So 2,000 is a very niche market. You are a special person if you are out at sea. So I think the jobs are, chances are very good that you will end up in a good company. A lot of companies which take on merit and a lot of institutes which work on merit. And secondly, if you are GP rating, then you have to be very, very careful. So आपने 10th 12th कर ली, अब आप सोच रहे हो कि भैया चलो किसी ने बोला मर्चेंट नेवी में बड़ा पैसा है। एक तो ये स्टेटमेंट पे कभी समुद्र में मत आना, ओ मर्चेंट नेवी में बड़ा पैसा है। भाई स्ट्रगल है, पहले नौकरी होनी चाहिए, फिर पैसा है। नौकरी होने के लिए पहले आपको सही लोगों को मिलना है।
So if you are doing GP rating, you have to be very, very choosy about which college, what is the placement record, how you will get job. So once you are mentally ready, then of course you do your GP rating 6 months course. Otherwise, the better one is catering. GP rating 10,000 people pass out every year. There are only 2,000 jobs. And DG Shipping is yet to make its own order, implementation of its own order, where the next batch should be basis placement record of 1 year back, which they have submitted to Madras High Court. So DG Shipping भी ढीले ढाले तरीके से काम कर रहा है. और CCMC कैटरिंग उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. एवरी ईयर अबाउट 1,200 पीपल पास आउट एंड नियरली एवरीबडी गेट्स जॉब. बट देन इंडियन यूथ दे थिंक ओ यार ये कुकरी वुकरी क्या करना है, क्या कुकिंग करनी है यार, मैंने तो जहाज चलाना है. तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है ना. 5 स्टार होटल सारे ही जो हैं वो रिसेप्शन डेस्क से नहीं चलते, ठीक है ना. तो कुकरी भी बहुत अच्छी लाइन है. तो मुझे लगता है जो अच्छा काम करते हैं उसकी उसमें कदर भी पड़ती है. Then the third one is open CDC. So you have a fitter and you have 6G welding certificates. You know how to fix the things by gas cutting, welding, and you work in workshops and all that. Then you can go into that particular line. So cruise line are the top 5 employees among the top 10 employees in India are the cruise line ships. But until and unless you don't know what skills are required and you are not confident you are one among the best there and you are not going to the right institute, I think it's a struggle for the Indian ratings, which will continue for next 100 years. There's nothing going to change. And last of the least, if you are an electrical guy and you have done BE electrical, you are meritorious, you want to make a career at sea, fantastic, do your ETO course 16 weeks, go to the right institute. So there 60 to 70% possibility is that you will get selected in the right company and all that. So there are also very limited colleges which have been given this clearance to do ETO course. तो बस मर्चेंट नेवी में जाने के यही तरीके हैं, 4 तरीके हैं. बाकी तो अगर आप रेटिंग के ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने जितना रिसर्च किया, इट इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस होते हैं. नहीं यहाँ होता ही स्कैम है. स्कैम ही होता है. जनरल पर्पस रेटिंग ऐसा है, ये बना तो दिया 6 महीने का कोर्स, पर इसमें नौकरी नहीं मिलेगी. अच्छा. मेरी तो सख्त हिदायत है कि अगर आपका कोई मामा चाचा ताया आपको नौकरी नहीं दिलवा सकता ना ईमानदारी से, तो ये कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप इतने पैसे लगाएंगे, 2-2.5 लाख लगाएंगे, 6 महीने का कोर्स करेंगे, सरकार एग्ज़ाम लेगी, यू विल पास द एग्ज़ाम एंड ठीक है, आपने यूनिफॉर्म में मार्च पास्ट कर लिया. उसके बाद में 625 RPSL कंपनीज आर देयर. इफ़ एज यूथ यू कांट वॉक इनटू दीज 400 कंपनीज एंड यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनीज एंड यू डोंट नो हु आर द पीपल हुम यू हैव टॉक टू एट रिसेप्शन, मुझे लगता है नौकरी आनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. एंड देन यू कांट एक्सपेक्ट यू आर गेटिंग जॉब ऑन अ टग बोट विद 5,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी और 10,000 और 15,000 और 20,000. देन से नहीं हमने तो VLCC में जाना है, क्या बात है यार, हम बड़े आदमी हैं, बड़े जहाज पे जाना है. वो ये सब नहीं चलता है. GP रेटिंग में बड़ा संघर्ष है. और मुझे लगता है कि गांव में वार्ड पंच का इलेक्शन होता है. सबसे मुश्किल इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में वार्ड पंच का होता है. ठीक है, 200 लोग वोट करेंगे, 4 खड़े हो जाएंगे. तो वार्ड पंच का इलेक्शन इज इक्वल टू गेटिंग अ जॉब इन GP रेटिंग. दोनों का भैया सेम, बड़ा संघर्ष है. पसीने छूट गए. भगवान की बड़ी कृपा है कि कम से कम मेरे को ये कोर्स नहीं करना पड़ रहा, बट जिनको ये करना पड़ता है ये संघर्ष उनके लिए. चोरी चकारी बड़ी होती है. व्हाट्सअप पर आ रहा है, विल गिव यू जॉब, पे 5 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ गारंटी है, दुबई भेज दिया, ईरान भेज दिया. DG शिपिंग भी लगा हुआ है, मतलब चोर आगे पुलिस पीछे, पुलिस आगे चोर पीछे, वो सब पहले भी चल रहा था, कदम आगे रह गई. हाँ. सैलरीज एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है स्टार्टर के लिए? देखो, अगर तो यू आर एब्सोल्युटली इनटू द राइट डायरेक्शन एंड यू गॉट योर जॉब, so I think as a GP rating, minimum 10,000 rupees, maximum $600 per month. 600 first ship. And the maximum salary what you can get is nearly $2,000 after maybe 8 to 10 years of experience on ships. And just imagine you getting nearly 1.8 lakh rupees per month. You don't have to pay taxes and all that. But there's a life at sea. There's a cost for it. ठीक है ना. वो जो बीवी तुम्हारे पीछे से या तुम्हारे माँ बाप बच्चे जो जी रहे हैं ना पीछे से, ये आप उसको भी साथ में लेकर चलिए. आप किसी के जीवन और मरण में नहीं पहुंच सकते, किसी की शादियाँ नहीं अटेंड कर सकते. ठीक है, तो उसका भी एक कॉस्ट है. कैप्टन डेक साइड में चले जाओ, बल्ले बल्ले, वो एकदम टन सैलरी है. इफ़ यू आर डेक कैडेट, मिनिमम इज अबाउट $300, so as good as 25,000 rupees per month start. Then 18 months, then do your exams, then of course you get $2,500 per month. सबसे अच्छी बात ये मर्चेंट नेवी की, वी टॉक इन डॉलर्स. हम रुपए में बात नहीं करते यहाँ पर हमें रुपए को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो मुझे लगता है यार ठीक है, जवानी में हमको सबको नौकरियां चाहिए, हम इसलिए पढ़ाई करते हैं. हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा कोई शौक है फ्री में समाज सेवा करने का. नहीं, नौकरी चाहिए. तो मुझे बताओ कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें 25 साल में आप चीफ ऑफिसर बन जाएंगे या सेकंड ऑफिसर रहेंगे या फिर आप थर्ड इंजीनियर रहेंगे एंड योर सैलरी विल बी एज गुड एज $5,000. हु पेज यू 4.5 लाख रुपीज पर मंथ, एश्योर इन विच सैलरी, विच जॉब? देयर इज नथिंग. So I mean to say, you're highly skilled labor at sea,
So very proud moment, and it takes about 10 to 15 years to become master. Only when you become master, then only your salary is at least minimum $10,000, maximum $20,000 per month. You are on LNG, it comes to $20,000 to $22,000 per month. So I mean to say salaries look good, but you have to pass exams. You have to study. You have to be at sea. You have to upgrade your skills. You have to keep coming back to training institutes. I mean to say this is something which not many people know. So adherently or inadvertently, the time you get with your family out of 365 days is certainly not more than 100 days. Because 200 days you are at sea. Then of course you need 30-40 days every year, to upgrade your skills. Which is, I think, part and parcel of life. बहुत बढ़िया नौकरी है, शानदार नौकरी है. हमने तो इसमें खूब कमाया और बच्चों की इज्जत भी कमाई. और हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि मर्चेंट नेवी में अगर रहना है तो मुझे लगता है कि बॉम्बे जैसे शहर में टिकना बहुत ज़रूरी है. पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया शहर है. बट एज यू राइटली सेड कि वो जो सैक्रिफाइस आपको पे करना पड़ता है, दैट इज़ द कॉस्ट, कि फैमिली के साथ आप नहीं रह सकते. इज़ देयर एनी वे, मतलब आफ्टर 3, 4, 5 years डू दे कैन दे गेट देयर फैमिलीज ऑल्सो? हाँ, छोटे छोटे टेन्यूर्स के लिए आप जहाज पे परिवार को लेके जा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. मैनी ओनर्स अलाउ दैट. ओके, तो अच्छा है, वाइफ आपकी जहाज पे जा रही है, वो भी देख रही है, फिर उतरने के बाद में अप्रिशिएट करेगी, है ना, कि कम से कम नहीं यार मेरा हस्बैंड है, बड़ी मेहनत करता है. तो उसको भी समझ में आता है. तो ऑफिसर्स के लिए ही है ये, रेटिंग्स के लिए नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये फैमिली इज ऑफ कोर्स अलाउड ऑन बोर्ड. एंड आई फील दैट even if as a family you have not been on board, at least when your ship is in India and all that, government should ease the norms. At least family should be allowed to go on board and stay for one day and feel the ship and come back. हमारे यहाँ पर सरकार ने अपना ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, घटिया सिस्टम बनाया हुआ है. We are prisoners on ship in India. I think I am ashamed that government is yet to change the rule, and I am ashamed on myself that I have not been able to really push hard on this policy making. When you spend 6 months, 8 months on ship, do you ever get tired of the sea? नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता. मंथ एंड में सैलरी जाती है ना, बस उसके बाद में फिर ऊर्जा आ जाती है. तो मेरे को नहीं कभी ऐसा महसूस हुआ. होता होगा लोगों को, नहीं होता होगा, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं हुआ. मैंने ज़िंदगी में जितने जहाज किए, मैंने कभी साइन ऑफ लेटर नहीं दिया. आई वॉज देयर फॉर 13 months एज शी वॉज ऑन वन शिप इन MOL. कोई समस्या नहीं. उन्होंने बोला जी जनवरी में उतार दो. उन्होंने बोला फरवरी में उतारेंगे. ठीक है, जब उतारना उतार दो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता. सो आई थिंक इफ़ यू रियली आस्क मी कि मिस करते थे नहीं करते थे, ये पर्सनल नेचर है ना, किसी का हर एक के स्वभाव के ऊपर है. थोड़ा सा बैराग आ जाता है. सो आई थिंक दैट थिंग टू व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड ऑल दैट, व्हेन यू आर स्टेइंग विद योरसेल्फ, सो आई थिंक यू एडजस्ट टू दैट. इंडियंस की सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज में हम फैले हुए हैं और हमने अपना कल्चर जिंदा रखा हुआ है. तो जहाज पे भी हम अपना कल्चर जिंदा रखते हैं. दीपावली होती है, होली होती है, सारे त्यौहार मनाते हैं. अच्छा, हाँ, अरे पूछो मत. उधर ईद आती है, ईद मनाते हैं. हर संडे बिरयानी बनती है ना. मतलब है जहाज पे बड़ी जोरदार लाइफ है. ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का मत समझो. क्रिकेट भी खेल लेते हैं आजकल लोग, है ना. तो है, ठीक है, बढ़िया है. What is the one advice that you will give to a person who is thinking of joining Merchant Navy? उसका mindset कैसा होना चाहिए for next 6 months to 1 year? उसके माइंड में कॉस्ट के हिसाब से भी कितने अप्रोप्रिएशंस होने चाहिए उसके पास, एंड व्हाट इज द प्रिपरेशन हिज और हर फैमिली आल्सो शुड डू? Yeah, this is a very important question. I'm glad that you're asking me this. Thank you for this. And my suggestion to all the youngsters is, when you are in 10th class, focus on your studies. And when you are in 11th class, if you have taken PCM, again, just study. Because as a student, you are only expected to study very well. It matters. This is India. The system is like this. And of course, in 12th class, it's a board exam. You have to secure 60% and above in PCM. So you have to have a book, guidance book from the Merchant Navy. आजकल बहुत सारी मिल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए. तो मुझे लगता है मेंटली आपको सिर्फ इतना ही तैयार होना है कि आई एम गोइंग टू स्टडी वेल एंड आई एम गोइंग टू पास माय MUCT. दैट्स ऑल. डोंट टॉक अबाउट 100 steps ahead. जस्ट गो one step. ओके. हमारे यहाँ पर पंजाबी में बोलते पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा. वैष्णो देवी जाते ना, गो स्टेप बाय स्टेप. इट विल हैपन. डोंट वरी. स्टे फोकस्ड. सुबह 4 बजे उठो, रात को 8 बजे सो जाओ. दैट्स इट. मोबाइल फोन को दूर रख दो थोड़ी देर के लिए. उसके बाद में आपने जब एग्जाम्स पास कर लिए, एंड इफ यू आर इन मेरिट, go to the right institutes. People know where to get the job. Nowadays, net is full of that. If you still don't have that,
यू कैन ऑलवेज फिगर इट आउट, बिकॉज मर्चेंट नेवी के लोग पूरे हिंदुस्तान में, हर गांव में, हर शहर में एक ना एक तो घर है ही है. उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग में आपको मिल गई सीट, and if you are doing DNS, it is 7 lakh. If you are doing GP rating, it is average is 2.5 lakhs. If you are doing ETO course for 16 weeks, it is about 3 lakh rupees. If you are going to do CCMC catering course, it is again 2 to 3 lakh rupees. And if you are going to do BE Marine, then it is 4 years course. It is about 15 lakhs. Don't worry about money. Your parents will figure it out. That's not your job. आपका काम है सही इंस्टीट्यूट जाना. पैसे की चिंता आप मत करो. आप पैसे की चिंता करोगे, you cannot be what your father is. वो सोचेंगे उन्होंने क्या करना है आपकी फीस के लिए. आप सोचिए कि मैंने उधर जाके कैसे पढ़ के बिना फेल हुए अच्छे से कैसे स्किल्स लेनी है, अच्छे से कैसे स्टडीज अपनी करके एग्जाम, बिकॉज उसके बाद भी एग्जाम्स है. डीएनएस में IMU CET के बाद में भी एग्जाम्स है. फर्स्ट सेमेस्टर you got exams, second semester you got exams, you have to pass that. BE Marine also you got exams, GP rating also government takes exams, CCMC also, GME also, I mean to say ETO course also. So I think everywhere there is exams. अच्छे से पढ़ो, हो गया. कॉलेज में कोई ना कोई कंपनी आएगी. प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू. जब आएगी तब देंगे ना इंटरव्यू. जब पास आउट होंगे तब कंपनी में जाएंगे ना. तो A+ लेकर आइए. ऐसा है, हुस्न की चर्चा हर जगह होती है ना. और वैसे ही आपके पास कौशल्य है ना, उसका रुतबा भी हर एक जगह जाके नजर आता है. जौहरी सब जगह बैठे हुए हैं. आपको मिला नहीं मिला ये एक बात हो सकती है. सो आई थिंक गेटिंग अ जॉब depends a lot how you have performed from 10th class onwards. Merit counts. This is merchant navy. सिफारिश is okay, but merit counts. When you say right institute, कैसे हम लोग समझे कोई right institute है? देखो, DNS के लिए तो शेट्टी साहब का धन्यवाद, जो हमारे DG शिपिंग रहे, है ना. उन्होंने तो कंपलसरी कर दिया कि भैया स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए. सो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इफ यू आस्क मी आर लाइक IMU themselves. देन ऑफ कोर्स TS रहमान, ग्रेट ईस्टर्न का एक अपना इंस्टीट्यूट है, तोलानी है, एंग्लो ईस्टर्न का है. तो ऐसे कई HIMT है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं. मुझे लगता है कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको उनसे मांगना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए. DNS इज नो प्रॉब्लम. नाउ लेट्स कम टू BE Marine. देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज 50 to 60% गेट जॉब, या 40 to 50% दे स्ट्रगल. सो यू गॉट टू फिगर इट आउट बिफोर गोइंग टू द इंस्टीट्यूट. डोंट गो टू इंस्टीट्यूट कि मेरे घर के पास है, मेरे घर के पीछे है, चलो चल. ऐसा नहीं है भाई. गो फॉर द बेस्ट इफ यू कैन गेट एडमिशन इन दैट. देन यू आस्क्ड अबाउट द पोस्ट सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक फॉस्मा, मासा. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीसी करने के बाद में एग्जाम्स कहाँ देने हैं, उसकी तैयारी आपको उस दिन से करनी है जिस दिन आप पहले दिन जहाज पर जाते हैं. यू हैव टू बी ऑलवेज थिंकिंग यार मैंने 2 साल बाद क्या करना है. इंडियन यूथ इज वेरी गुड एट दैट. और मेरे को लगता है 2 साल बाद क्या करना है, अगर आप उसकी तैयारी 10th में करोगे, आप मर्चेंट नेवी में 12th के बाद पहुंच जाओगे. 12th के बाद आप इंस्टीट्यूट में गए और आप ये सोच रहे हो यार ठीक है, मैंने आफ्टर पासिंग इट आउट व्हेन आई गो ऑन शिप I have to do e-learning of DG shipping, which is free. Not many youth I have seen getting attached to that, but it's very good system. DG shipping has given it for free, thanks to Gadkari ji. तो उसके बाद फिर मैंने पोस्ट सी कहाँ से करना है, मासा कॉलेज से करना है, एंग्लो ईस्टर्न कॉलेज से करना है, फॉस्मा कॉलेज से करना है. ठीक है, या तो फिर मैंने कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है, पासिंग परसेंटेज ही 10 है. तो मुझे लगता है कि प्लानिंग अहेड मैटर्स, बट व्हाट इज इन हैंड, डू वेरी वेल इनटू दैट. ठीक है. Now we understood कि right institute कैसे choose करें. Now if there is something कहीं पे कोई चीज़ें बोली जा रही है, how do you is there some kind of a word or something that people say you can say कि this is a wrong institute or this is something that you're going to get scammed in this? Yeah. Yesterday only I got a WhatsApp message. बोलते यार हमारा एक डाडा सिवा करके जगह है हिमाचल में, जहाँ से मैं आता हूँ. वहाँ के एक बंदे ने मेरे को मैसेज भेजा, बोलता सर ये मेरे रिश्तेदार का, भांजे का ये एंट्रेंस होना है हिमाचल में, ये बताओ. मैंने बोला भैया टोटल फ्रॉड है. Okay. और मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दो. सो ऐसे इंस्टीट्यूट है मर्चेंट नेवी एंट्रेंस. अच्छा. और वो कैसे हो रहा है एंट्रेंस पता नहीं, वो रेटिंग के लिए होता ही नहीं है. तो हमने कई बार ऐसे झोल झमेले झपाटे देखे हैं. और मुझे लगता है कि DG शिपिंग भी इसमें लगा हुआ है. एंड जागरूक नागरिक, इफ यू आर सिटीजन यू नो हु इज वेरी मच अवेक टू ऑल दीज थिंग्स, यू शुड रिपोर्ट. यस, all DG shipping institutes are not saints. Yes, all are not thieves. How you figure it out, I can tell you very clearly. Do not judge an institute by the look, what is there in the brochure. Walk into the institute, ask for placement record. आपने एक ही चीज पूछनी है, नौकरी के आसार क्या हैं. वो बोलेंगे इतने हैं. बोले दिखाओ पहले कितने दिए. अगर आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, मर्चेंट नेवी में आने की जरूरत नहीं. यू आर इनटू द रॉन्ग पीपल्स हैंड एंड यू विल सफर. आपने
मर्चेंट नेवी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, राइट इंस्टीट्यूट कैसे चूज़ करना है, रॉन्ग इंस्टीट्यूट कैसे समझना है, वो बताया. नाउ अभी मर्चेंट नेवी के बारे में हम लोग इतना सब कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं. विद दिस डू यू वांट टू गिव व्यूअर्स सम काइंड ऑफ अ क्लोजिंग थॉट कि this is some kind of a quality that you have to build in your life if you want to be successful in merchant navy? That could be anything. Be disciplined, always show up on time. These are the qualities that always people don't give that much importance to, like being polished, always just like you're always presentable and you're always ready for the task. Do you think that is something? मेरी कंपनी में about 20,000 people walk into my office every year, and when I look, and every 20,000 के 20,000 अलग हैं. We get fraction of a second to see, and we get 5 seconds to really judge a person. Oh. And I think the first 5 seconds, what do you judge? आप शेवन हैं या नहीं है? आप कैटरिंग डिपार्टमेंट से हैं, आप शेव नहीं कर सकते, बड़े बड़े आपने बाल रखे हैं, आप गंदी कॉलर वाली शर्ट डालकर आ गए हैं, गोल्ड टी शर्ट सी डालकर आ गए हैं, आपके सर्टिफिकेट एक प्लास्टिक के लिफाफे में है, तो मुझे लगता है ये बड़ा ख़राब इंप्रेशन है. मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट मेरे जैसा आदमी तो नौकरी नहीं देगा. और अगर आप दैट इज़ अ बेस्ट मोमेंट फॉर यू, आपको ये लगता है यार मैं सबसे बढ़िया आज मेरा मोमेंट ये होगा कि मैं उधर जाकर जब रिसेप्शन पे अपने डॉक्यूमेंट्स दूँ, चाहे वो नौकरी दें चाहे नहीं दें, लेकिन आपको देखकर उनको ये लगना चाहिए यार बंदा सही है. तो हाउ डू यू नो बंदा सही है? 5 चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए. एवरी ऑफिस ओपन्स एट 9:30. बेटर गो देयर बाय 8:30, 8:45. यू आर मेंटली रेडी. You're not rushing against time. Spend 500 rupees on a folder to put best of your certificates and start with the priority of your certificates and put your DG profile into that. And including your co-curricular activities, sports and contract letters, whatever, your SIDs, CDC, एकदम बढ़िया तरीके से करो. और स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में चेकलिस्ट रखो कि सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स. उधर जब आप जिप खोलो तो वो फटा फुटा फोल्डर नहीं होना चाहिए. 500 रुपये में आपको ऐसे फोल्डर्स मिल जाएंगे जो 10 साल आपका साथ देंगे. Third thing, I think when you go into any office, do your homework. At least go into social media, find out about that company, figure it out, what is there. No need to ask anybody. There's enough information. Chat GPT, बहुत कुछ है. Fourth thing, go into DG Shipping website. वहाँ पर blacklisted agents का भी नाम है. हर एक RPSL के addresses हैं. अगर आप अंधेरी डालेंगे, आपको पता लग जाएगा. There are 105 companies in अंधेरी itself. You plan where you have to go at what time. Do your priority and try to do 5 to 7 companies. And I think very clearly, last of the least, fifth thing I want to tell you is, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सीवियर को पूछता हूँ भाई ये एप्लीकेशन किसने बनाई है. आप अपने परिचय के लिए यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय गिविंग 50 rupees टू समबडी इन सम शॉप. यू कांट राइट योर ओन एप्लीकेशन. राइट इट बाय हैंड. What is that you write in application? Your name, your address, your contact details, the courses what you have done, one photograph, and and if you have scored 80%, 90%, done ITI diploma, write something extra skills. What do you have? And you are going to one shop. सारे सीफेरर्स का एक फॉर्मेट है. अगर आप अपना परिचय नहीं बना सकते हो, यू थिंक कंपनीज आर नॉट लुकिंग टू दिस. कंपनीज आर लुकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट नो नीड टू राइट मोर देन 1 page. व्हाई आर यू मेकिंग अ CV ऑफ 10 pages? नो नीड. है ना. तो मेरे को लगता है कि एवरी कंपनी हैज इट्स ओन वे ऑफ जजिंग पीपल. दिस मे बी द माई वे, बट नॉट प्रॉब्ली द राइट वे फॉर अदर्स. बट आई फील जिस कंपनी ने नौकरी देनी है, दे विल लुक इन टू ऑल दिस. एंड एट द एंड ऑफ द डे, इफ दे इंटरव्यू यू, डोंट बुलशिट. हमारे यहाँ पर हवा में बातें मत करना, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, वो कोई बिकाऊ माल नहीं बैठा, सब टिकाऊ माल है जो दफ्तर में बैठा हुआ है. सो आई हैव सीन 4th engineers coming and giving interview freshers, and then they have passed exams and all that, and then they say, I didn't prepare. Oh, no. You have done 8 semesters, you have done 82 exams before you went to GME course, then you have done 2 semesters there, then of course you have done class 4 exams, and where you have got so many written, so many orals, and then you say, no, I forgot. No, that's not acceptable. So I think you need to prepare yourself well when you are entering office. नौकरी दे, मिलना नहीं मिलना वो भगवान के हाथ पे छोड़ दो, बट अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है वो अपने हाथ में रखो. कैप्टन, आई थिंक आपने ये हमारा डिस्कशन है, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट गाइड बुक फॉर एनी एस्पायरिंग सीफेरर. आई वांट टू बिफोर वी क्लोज द डिस्कशन हियर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट द विजन दैट यू हैव विथ VR मैरीटाइम. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. देखने में तो हम 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, पीछे आपके 11 लोग खड़े हुए हैं जो ये सब शूट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं एक युवा पॉडकास्ट में इतना दम रखे और मर्चेंट नेवी की बात लोगों तक पहुँचाए, आई एम इंडेप्टेड टू यू एंड टू योर टीम. एज फार एज VR मैरीटाइम इज कंसर्न, VR स्टैंड्स फॉर विभूतिराम. मेरे गुरुजी के चरणों में मैंने जिनके ज़िंदगी निकाली, उनकी दी हुई ये नौकरी है, उनका मैं सबसे पहला मुलाजिम हूँ. आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द कंपनी.
मेरा सिंपल विजन है, मैं अपने गुरु के पास गया था कि मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने मुझे ऐसे नौकरी दी कि नौकरी करने के बाद में उनका नौकर बन के, उनकी कंपनी का नौकर बन के आज मैं दूसरों को नौकरियां दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा काम सारी ज़िंदगी चलता रहे। माई जॉब इज़ टू फाइंड जॉब फॉर इंडियन सीफेयर्स एंड बीइंग अ थर्ड पार्टी क्रू मैनेजर, दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर लास्ट 16 years. भगवान की कृपा से आई वुड लाइक दिस टू कीप गोइंग ऑन फॉर नेक्स्ट मैनी years. My vision is to find employment for Indian seafarers. Even if I can find 10,000, it is less. If I find 20,000, it is less. If I find 30,000 jobs for Indian seafarers per year, for me, it is less. India has enough talent. I am very greedy that all Indians must have jobs at sea. They should not be unemployed. तो मुझे लगता है मेरा सिर्फ इतना ही लालच है कि इस पूरे हिंदुस्तान में मर्चेंट नेवी की नौकरी सबको मिले, किसी भी कंपनी से मिले, किसी भी ज़रिए से मिले, पर ईमानदारी से मिले। यही मेरा विजन है। और मुझे लगता है बीइंग अ वर्ल्ड मैरीटाइम पावर फॉर इंडिया, इफ दैट ड्रीम हैज़ टू कम ट्रू, द पैसेज ऑफ दैट ड्रीम passes through merchant navy, and in my life I want to be part of that destiny. Thank you so much, Captain. It was our honor to have you here for this discussion. I know that I have said this twice that before ending this discussion, but I really want to ask this question to you. How do someone become the great orator, a wonderful leader like you? माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, हम सनातनी जो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं वो शक्तिपीठ पाक अधिकृत कश्मीर में, इट्स इन POK। मेरे को लगता है कि एज अ चाइल्ड माई फादर यूज टू आस्क मी टू गो फॉर पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशंस एंड ऑल दैट, सो आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेट in 1976 when I was in first class that I stood second in storytelling. I don't know what story I told there or what it was. So I think oratory skills, they come through a lot of practice. They come through a lot of confidence. It comes through a lot of reading. And I personally feel it is probably a chip which is built in you when you are born. And speaking out to people from heart, दिल से बात करो, कोई उसमें लेपा पोती करने की ज़रूरत नहीं है। लोग दिल की बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। Anybody who wants to speak out from heart, I think, is a great orator. And Anna Dorai was one of the best orators in India, leader of the masses. है ना। एक हमारे सुब्रमण्यम भारती थे फ्रॉम तमिलनाडु, अ ग्रेट पोएट। और अगर आप ऐसे हमारे रामधारी सिंह दिनकर की बात करो, सो यू नो, बट अगेन ओरेटरी इज समथिंग डिफरेंट. बट व्हेन पीपल रीड भगत सिंह, they feel you don't need to be orator, you have to be a doer. So I think it's a combination of both. I would like to be doer as well as orator, and I would like to do what I practice. I would like to only say that. Do you have some book recommendation for the youth of India? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद पे जितना पढ़ोगे उतना कम है। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद को पढ़िए आप, और वो पढ़ने के बाद में वो आदमी जो 39 ईयर्स की एज में कर गया, भगत सिंह को पढ़िए, 23 साल में वो कर गया 1931 में, हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर किताबें पढ़नी है तो उनकी पढ़ो जिनको हिंदुस्तान 100 साल 500 साल बाद तक भी याद कर रहा है। और हमारे गाथा पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। Absolutely. Thank you so much, Sanjay sir. I really hope that you keep doing this great work for many, many more years to come. Thank you so much. थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।